ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے زبان پر ہلکے اور اعمال تولنے والے میزان میں بھاری ہے اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ صحیح البخاری۔ تفصیل سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بودھن ایم ایل اے محمد شکیل عامر کا آج مصروف ترین دن۔ انہوں نے ڈبل بیڈ روم مکانوں کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا اور ایڑپلی میں 9 تعمیر شدہ کسان ویدیکا بھون کا افتتاح انجام دیا۔ آشا ورکر سے مختلف خدمات لی جاتی ہے مگر ان کو برائے نام تنخواہ دی جاتی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آشا ورکرز کو جاب کارڈ دیا جائے اور 7,500 روپے تنخواہ دی جائے، CITU کا مطالبہ۔ کانگریس کسانوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا سونیا گاندھی نے اپنی یوم پیدائش تقریب کو سادگی سے منانے کی ہدایت دی۔ کانگریسی قائدین کا بیان۔ آج غریب و یتیموں میں کپڑے تقسیم کیے گئے۔ جواں سال قائد محسن خان کو صدر ضلع ویلفیئر پارٹی مقرر کیا گیا۔ قومی جنرل سیکریٹری نے احکاماتی مکتوب حوالے کیا اور ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن خان نے ممکنہ عوامی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایڑپلی میں 9 تعمیر شدہ ریتو ویدیکا بھون کا MLA بودھن محمد شکیل عامر کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ریتو ویدیکا بھونز کی تعمیر سے کسانوں کو زبردست راحت ملے گی اور وہ اپنی فصلوں اور دیگر مسائل کے متعلق یہاں پر بیٹھ کر آپس میں مشاورت کر سکیں گے۔ بودھن MLA محمد شکیل عامر نے آج ایڑپلی میں 9 تعمیر شدہ ریتو ویدیکا بھون کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ کے علاوہ چیئرپرسن بودھن توم پدماوتی، ایڑپلی وائس MP عمران خان اور وائس چیئرمین بودھن بلدیہ احتشام سہیل بھی موجود تھے۔ ایڑپلی کی عوام کی جانب سے MLA محمد شکیل عامر کا والہانہ استقبال کیا گیا اور ان کی بکثرت گلپوشی کی گئی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے محمد شکیل عامر نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کسانوں کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، لہٰذا کسانوں کو سال میں 2 فصلوں کے لیے ریتو بندھو اسکیم کے تحت 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ریتو بیمہ اسکیم کے تحت کسانوں کو اموات پر بھاری رقم فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کسانوں کو مشاورت کے لیے ریتو ویدیکا بھون تعمیر کروا کر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اس سے قبل کسی جگہ بیٹھنے اور مشاورت کرنے یا کسی قسم کا اجلاس منعقد کرنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ کسان مشاورت کے لیے کسی ہوٹل یا کسی گھر میں جمع ہو جاتے تھے اور مشاورت کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں جگہ کی تنگی اور دیگر مسائل درپیش ہوتے تھے، لہٰذا ان مشکلات کو سمجھتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے کسانوں کے لیے ریاست بھر میں ریتو ویدیکا بھونز بنوانے کا فیصلہ کیا اور ریاست میں کئی مقامات پر ریتو ویدیکا بھونز کی تعمیر عمل میں آ چکی ہے، جن میں سے ایک ایڑپلی کا ریتو ویدیکا بھون بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر منڈل میں ریتو ویدیکا بھونز کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی، جہاں بیٹھ کر کسان اپنے تمام مسائل پر آپس میں مشاورت کریں گے اور مشترکہ طور پر بہتر فیصلے لے سکیں گے۔ ఏడుపల్లిలో రైతుల కోసం చాలా సంతోషమైన శుభదినం ఈరోజు। ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని విధంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులకు అండగా ఉంటూ మళ్ళా రైతు తన రక్తాన్ని ఇచ్చి చెమట ఇచ్చి ఏదైతే ఈరోజు రైతులు పంటలు పండించుకుంటున్నారో ఆ పంటలకు ఎటువంటి సాగు చేస్తే బాగుంటుంది, మళ్ళీ ఆ పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఏ విధంగా మనం చర్చ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో ఏమవుతుందంటే రైతులు ఎక్కడైనా మాట్లాడుకోవాలంటే వేదికనే లేకుండే వాళ్ళు। ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలంటే మల్కారెడ్డి కాక ఇంట్లోనో, సుభాష్ అన్న ఇంట్లోనో, మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లోనో, లేకపోతే యాదవ్ ఇంట్లోనైనా, సీను ఇంట్లోనైనా అట్లా కూర్చొని ఏదైనా రైతులు చర్చ చేసుకుంటుండే। ఇప్పుడు ఈ రైతు వేదిక ఎందుకు చేసినామంటే بودھن MLA محمد شکیل عامر کے ہاتھوں ڈبل بیڈ روم مکانوں کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد۔ انہوں نے کہا کہ ہر غریب خاندان کو ذاتی مکان فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق غریب خاندانوں میں ان مکانات کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔
जरूरत पर मजीद मकान तामीर किए जाएंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन के वार्ड नंबर 1 में पेगड़ापल्ली रोड पर डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा इनकी अहलिया आयशा फातिमा और चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती भी मौजूद थी। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तमाम मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे। ये रियासती हुकूमत की अहम तरीन स्कीम है जिसके तहत वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि तमाम बेघर अफराद को ज़ाती मकान की छत फराहम हो और वो भारी किरायों के अज़ाब से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानों के अलावा ज़रूरत पर मज़ीद डबल बेडरूम मकान बनाए जाएंगे और तमाम मुस्तहिक अफराद को मकान की छत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर गरीब इंसान की ख्वाहिश होती है और वो ख्वाब देखता है कि इसका ज़ाती मकान हो जहाँ वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून व इत्मीनान की जिंदगी गुजारे और इस ख्वाब को रियासती वज़ीर आला केसीआर पूरा कर रहे हैं और रियासत में लाखों की तादाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर करवाते हुए उसे गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर रही है और हटधर्मी करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिसों को बंद रखा जा रहा है। इन ऑफिसों से रोजाना 50 लाख की आमदनी होती थी मगर 94 दिनों से ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद है जिससे हुकूमती खजाने का नुकसान होगा और बोझ अवाम पर आयद होगा। मोहम्मद जिया का बयान। रियल एस्टेट ताजरीन और रीसेलर्स ने आज एहतजाजी रैली निकाली और जिला कलेक्टर व आरडीओ को एक मुतालबाती महजर पेश किया जिसमें रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि रियासत के तमाम रजिस्ट्रेशन ऑफिसों को फिलफौर खोल दिया जाए। रियल एस्टेट ताजरीन ने LRS कानून की मनसूखी का भी मुतालबा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि बरसों कबल खरीदे गए प्लॉट्स पर भी LRS को कैसे लागू किया जा सकता है। इस मौके पर रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद जिया ने बताया कि रियासत में 94 दिन से रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद है। इन रजिस्ट्रेशन ऑफिसों की तादाद जुमला 141 है और इन दफातर से रोजाना कमोबेश 50 लाख की आमदनी होती थी। गुज़िश्ता 94 दिनों से ये आमदनी बंद हो चुकी है और अवामी खजाने पर एक बड़ा खसारा है। उन्होंने सवाल किया कि इस खसारे की पाबजाई के लिए किस पर बोझ डाला जाएगा। मोहम्मद जिया ने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बंद होने से होने वाले नुकसान की पाबजाई के लिए गरीब अवाम पर ही बोझ डाला जाएगा। इसी तरह रियासती हुकूमत की गलती की सजा भोली भाली अवाम को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है जबकि अदालत ने रजिस्ट्रेशन ऑफिसों को खोल देने की हिदायत दी थी लेकिन रियासती हुकूमत अब भी टाल मटोल का मुजाहरा कर रही है और अवाम को मुश्किलात का शिकार बना रही है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो केसीआर के गाइडलाइंस है उसके खिलाफ यहाँ जमा हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जबकि हाई कोर्ट परमिशन दे दी कि हुकूमत को कि रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए, ये हाई कोर्ट की तौहीन करके इसको रुका रहे और अपनी मनमानी चला रहे। ये मनमानी चलने वाली नहीं है। पूरे तेलंगाना में 141 डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जिसका डेली का कलेक्शन 50 लाख रहता। ये इतना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं और ये रेवेन्यू का फिर रीज़न प्राइवेट पब्लिक से दूसरे टैक्सों से वसूल किया जाएगा। ये आवाम को समझना चाहिए और आवाम को आगे आके बात करना चाहिए इस पर। और ये रजिस्ट्रेशन जो पुराने धरनी पोर्टल को छोड़ के जो पुराने रूल्स थे उसी के साथ चालू करने के लिए कोर्ट परमिशन दे दी, उसी से चालू किया जाए। बोधन रोड पर कब्रिस्तान की गेट के पास और जमीयतुल उलमा के दफ्तर के करीब पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज। महकूमे बल्दिया फौरी तवज्जो दे और इस पाइपलाइन की मरम्मत करवाए। अक्सर इस तरह के लीकेज सड़क को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। बोधन रोड हमेशा इस मसले का शिकार रही। शहर की मारूफ सड़क बोधन रोड पर हर आए दिन कुछ न कुछ मसाइल नजर आते ही रहते हैं। इस सड़क पर अब 2 जगह पीने के पानी की पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है और बड़ी मिकदार में इस पाइपलाइन से पानी निकलकर सड़कों पर जमा हो रहा है जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही है। बोधन रोड पर पीने के पानी की पाइप 2 जगह टूट फूट का शिकार हुई है। दफ्तर जमीयतुल उलमा के दफ्तर के रूबरू और बोधन बस स्टैंड के करीब दूसरी जगह पीने के पानी की पाइपलाइन टूट फूट का शिकार हुई मगर ताहाल महकूमे बल्दिया का कोई भी मुलाजिम इस जगह नजर नहीं आया और इस मखदूश पाइपलाइन को दुरुस्त करने के इक़दाम नहीं किए गए। इस मौके पर मौलाना शाहिद रजा ने बताया कि पानी के लीकेज और दूर तक फैलने की वजह से कब्रिस्तान को आने वाले अफराद को मुश्किलात दरपेश हो रही है और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों बिलखुसूस कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि वो फौरी इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने के इक़दाम करे। मौलाना ने कहा कि बोधन रोड पर ऐसी सूरत हाल बारहा देखी गई। अक्सर यहाँ पाइपलाइन मखदूश हो जाती है और उससे निकलने वाला पानी सड़क को तबाह व बर्बाद कर देता है और सड़क पर जा बजा गड्ढे बन जाते हैं। लिहाजा इस पाइपलाइन की फौरी मरम्मत लाजमी है। निज़ामाबाद बोधन बस स्टैंड के रूबरू जो पानी के पाइप जाते हैं, ड्रेन का जो सिस्टम है नाकिस होने की वजह से
अक्सर और बेशतर यहाँ देखा जाता है कि पानी निकल कर रोड पे जाम हो जाता है, और चूँकि कब्रिस्तान के ये बिल्कुल रूबरू है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान के सामने भी पानी जाम हो जा रहा, और आने जाने वाले लोग जो कब्रिस्तान में दुआ वगैरह के लिए आते हैं, कब्रिस्तान में मैयतें वगैरह आती हैं, तो आने वालों के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। लिहाजा महकमा बल्दिया कमिश्नर साहब से और MLA साहब वगैरह से भी हमारी गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें। जवासल कायद मोहसिन खान को सदर जिला वेलफेयर पार्टी मुकर्रर किया गया। वेलफेयर पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने इस बात का ऐलान किया और तकर्रुरनामा पेश किया। मोहसिन खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देंगे और पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वेलफेयर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जवासल कायद मोहसिन खान को जिला सदर वेलफेयर पार्टी की हैसियत से नामजद करने का ऐलान किया। मोहसिन खान गुज़िश्ता कई सालों से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़कर अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपने सदर जिला वेलफेयर पार्टी मुकर्रर किए जाने पर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी और दिगर पार्टी हुकाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो अवामी मसाइल की यकसुई के लिए शब व रोज़ जद्दोजहद करेंगे। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मोहसिन खान को दिली मुबारकबाद दी और इस तौक़े का इजहार किया कि मोहसिन खान पूरी मेहनत व लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे और अवामी खिदमत का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात दगरगू होते जा रहे हैं, हर तरफ मसाइल के अंबार नजर आ रहे हैं। मुल्क में ताजिर, किसान और अवाम एकसां परेशान हैं। उन्होंने किसान मुखालिफ बिलों पर अपने वाज़े मौक़िफ़ का ऐलान किया और बताया कि इस नाजुक मौके पर हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसान 3 बिलों से मरकजी हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करे। इस इजलास में वेलफेयर पार्टी के सिटी सदर रियाज पटेल, सेक्रेटरी अजहर बिन अब्दुल्ला, यूथ लीडर अब्दुल खदीर के अलावा मिर्जा वसीम बेग और दिगर मौजूद थे। 3 महीने पहले ही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से अपॉइंट किए थे और आप तक ये बात पहुंचाने में हमारा आना ज़रा कुछ देर हो गया था। तो मोहसिन खान साहब ये हमारे पार्टी के शुरू से लीडर हैं और डिस्ट्रिक्ट के लिए इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का सादगी से एहतमाम। ये सोनिया गांधी का 75वां जन्मदिन है। कांग्रेसी कायदीन ने इस मौके पर यतीम बच्चों और गरीब खवातीन में कपड़े तकसीम किए। बताया कि किसानों के मुश्किल वक्त में धूमधाम से इज्तिनाब किया गया है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जन्मदिन तकरीब इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई, जिसमें साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी, सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और सदर सिटी केशवेनु भी शामिल थे। सालगिरह तकरीब में किसी किस्म की धूमधाम की बजाय कांग्रेसी कायदीन ने यतीम खाना पहुंचकर यतीम बच्चों में कपड़े तकसीम किए और साथ ही मधु याश की गौड़ फाउंडेशन की जानिब से साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक कुर्बानियां देने वाले सोनिया गांधी के खानदान ने इस बार भी कुर्बानी दी और किसान भाइयों के मुश्किलात के वक्त में खुशियां मनाने से इनकार करते हुए सादगी से जन्मदिन तकरीब मनाने की हिदायत दी, जिस पर आज जन्मदिन का जश्न मनाने की बजाय गरीब यतीम बच्चों और खवातीन में कपड़े तकसीम किए गए। मनकु मन प्रजలకు కొన్ని కాలాల పాటు సేవలు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఈరోజు మరి వారు కూడా జన్మదినోత్సవం చేయొద్దనగానే ఇక్కడ చిన్న హాస్టల్లో ఎటువంటి కేకు కట్ చేయకుండా అనాథ పిల్లలకు బట్టలు ఇస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరికీ ఈరోజు బట్టలు ఇచ్చడం జరిగింది। దానికి పంచినందుకు వాళ్ళని కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను। అదేవిధంగా మరి ఒక్కసారి బీజేపీ పార్టీకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। సోనియా గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి సహకారాలతో అనాథ పిల్లలకు దుస్తులు పంపిణీ జరగడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఏఐసి సెక్రటరీ మదియాసి గౌడ్ గారి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈరోజు మహిళలకు చీర పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ భవన్లో వీరిద్దరి సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆమె సేవలను కొనియాడాల్సిన, ఎందుకంటే ఆమె ఈ తెలంగాణకు ఆమె చేసినటువంటి సేవ మామూలు విషయం కాదు। ఈరోజు स्वतंत्र तेलंगाना एर्पाट చేయడంలో आशा वर्कर से बेशुमार काम लिए जाते लेकिन इनको इसका आशा वर्कर से बेशुमार काम लिए जाते हैं लेकिन इनको इसका मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता और ना ही मुलाजिमत की कोई गारंटी है। CITU जिला नायब सदर ने मुतालबा किया
कि आशा वर्कर्स को जॉब कार्ड फ्राहम किया जाए और माहाना कम से कम 7,500 रुपये तनख्वाह फ्राहम की जाए। CITU के जिला नायब सदर मलयाला गोवर्धन की क़ियादत में आशा वर्कर्स ने जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मलयाला गोवर्धन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वबा के दौरान संगीन हालत में खिदमत अंजाम देने वाली और अपनी जानों को खतरात में डालने वाली आशा वर्कर्स को नज़रअंदाज कर देना अफसोसनाक बात है, जबकि दीगर रियासतों में इन आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और रियासत तेलंगाना में इनको बराए नाम 3 से 4,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को जॉब कार्ड फ्राहम किया जाए और इनको कम से कम 7,500 रुपये तनख्वाह फ्राहम की जाए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स पर काम का जायद बोझ डाला जाता है, मगर इनको तनख्वाह देने में लीत व लाल का मुजाहरा किया जाता है। हत्ता के स्टेशनरी के पैसे भी DMNHO की जानिब से फ्राहम नहीं किए जाते। కోవిడ్ నేపథ్యంలో కరోనా వారియర్స్గా ఫ్రంట్ లైన్లో పనిచేస్తున్న ఆశా వర్కర్లు తన ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి ఈరోజు ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న ఆశా వర్కర్లకి కనీస వేతనాలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం వారితోటి వెట్టి చాకిరి చేయించుకుంటున్నది. గతంలో ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మేము సమ్మెలోకి వెళ్తామని చెప్పేసి సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి ఆందోళన నిర్వహిస్తే రాష్ట్ర ఏదైతే ప్రభుత్వ కార్యదర్శి ఉన్నారో అదేవిధంగా హెల్త్ కార్యదర్శి చర్చలకు పిలిచి ఆ చర్చల సందర్భంగా మీరు ఏదైతే సేవలు అందిస్తున్నారో వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు కూడా మీకు కనీసం 7,200 నుండి 7,500 వరకు తగ్గకుండా మీకు పారితోషికాలు అందేటట్టు చేస్తాం, పనితో నిమిత్తం లేకుండా చేస్తామని చెప్పిండు. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दफ्तर वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ शोबेजात का अचानक दौरा किया और मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लिया। चेयरमैन के इस अचानक दौरे ने वक्फ मुलाजमीन में खौफ व हरास का माहौल बना दिया। इस मौके पर चेयरमैन ने मुलाजमीन से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज हज हाउस में वाक़ दफ्तर वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा किया और वहाँ जारी कामों का जायजा लिया। उमूमी तौर पर चेयरमैन कभी भी इन शोबेजात की सिमत रुख नहीं करते, लिहाजा मुलाजमीन मनमानी अंदाज में काम करते या फिर अक्सर काम से गायब नजर आते। चेयरमैन के इस सेक्शन के दौरे ने मुलाजमीन में सनसनी का माहौल बना दिया। एक खौफ हरास की कैफियत साफ महसूस की गई। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ मुलाजमीन से बेशुमार इस्तिफसारात किए और बाहर के अफराद की आमद पर एतराज़ भी जताया और एक सेक्शन में लोगों को बातचीत में मसरूफ देखकर बरहमी का इजहार किया। अगर मुस्तकबिल में भी चेयरमैन इसी तरह इन शोबेजात का दौरा करते रहे तो सूरत हाल में बेहतरी आने की उम्मीद है। इससे वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी जरूर आएगी। TNGOs हैदराबाद की जानिब से जिमखाना ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। SM हुसैनी मुजीब का बयान। हैदराबाद TNGO सदर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि TNGO की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिनों से जमखाना ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासती वज़ीर आला KCR ने मरण बरत रखा था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मजबूर हो गई। लिहाजा मरण बरत के दिनों को यादगार बनाने के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये टूर्नामेंट गुज़िश्ता 5 सालों से इन्हीं दिनों खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमों में हिस्सा लिया। सेमीफाइनल के मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और श्रीनिवास गौड़ ने खेल का जायजा लिया। फाइनल के मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली शरीक होंगे और इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आएंगी। SM हुसैनी मुजीब ने तमामी अहबाब से इस टूर्नामेंट के मुशाहिदे की ख्वाहिश की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से ये 5वां साल है स्पोर्ट्स मीटिंग मुनक़िद की गई। तो पिछले मुसलसिल 4 दिन से जिमखाना ग्राउंड में मैचेस हुए क्वार्टर फाइनल तक। जुमला 20 टीम इस टूर्नामेंट में आए। आज सेमीफाइनल हो रहा है। आज के सेमीफाइनल में अलहज जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के और हमारे AV रेड्डी साहब जो चेयरमैन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी तेलंगाना के, उन्होंने यहाँ ये जलसे में शिरकत की और इनाग्रेशन किया। और हमारे सेंट्रल यूनियन के जानिब से सत्यनारायण गौड़ साहब और चौथी जमात के हमारे मुजीब साहब और दीगर हजरात इसमें तशरीफ लाए। उर्दू के शायरों, अदीबों और मुसन्निफीन और सहाफ़ियों की तफसीलात पर मुश्तमिल एक डायरेक्टरी का रस्मी इजरा उर्दू एकेडमी चेयरमैन के हाथों अमल में आया। इस डायरेक्टरी में उर्दू अदबी मवाद भी शामिल है, लिहाजा ये डायरेक्टरी उर्दू की तरक्की व तरवीज में माविन बनेगी।
उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से एक ऐसी टेलीफोन डायरेक्टरी मुरत्तिब की गई जिसमें शायरों, अदीबों, मुसन्निफ और सहाफियों के नाम हैं और टेलीफोन नंबर दर्ज है। ये एक अहम असासा साबित होगा जब एक डायरेक्टरी में बेशुमार आदमी खिदमत गुजारों को जमा किया गया। इस डायरेक्टरी की रस्म इजराई सदर नशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर डायरेक्टरी सेक्रेटरी मोहम्मद गौस के अलावा उर्दू एकेडमी का अमला भी मौजूद था। बताया गया कि 20 साल कबल मुश्तरका आंध्र प्रदेश में इस तरह की टेलीफोन डायरेक्टरी मुरत्तिब की गई थी। उसके बाद से अब तक इस सिमत किसी ने तवज्जो नहीं दी और आज 20 साल बाद फिर से उर्दू एकेडमी ने इस डायरेक्टरी को तरतीब देने का काम अंजाम दिया। बताया गया कि इस डायरेक्टरी में उर्दू अदबी मवाद भी शामिल किया गया और अहम शोरा के कलाम भी मौजूद है, जिससे ये डायरेक्टरी एक अहम अदबी किताब होगी जो उर्दू की तरक्की व तरवीज में अहम रोल अंजाम देगी। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से आज एक अहम इनकलाबी क़दम उठाया गया। जैसे आके अभी आपने देखा कि सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी जनाब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने रस्म इजरा अंजाम दी एक ऐसी किताब की जो हमारी रियासत के अंदर शोरा इकराम, मुसन्निफ़ीन और जितने जर्नलिस्ट हजरात हैं उन हजरात की खिदमात को न सिर्फ हमने तस्लीम किया बल्कि उन तमाम का जो बायोडाटा था आप देख सकते हैं कि 634 तमाम हजरात का जो तकरीबन उनका बायो प्रोफाइल हमने जमा किया और ये बहुत बरसों से काम चल रहा था। इसकी बहुत अरखरेज़ी की और हमने आज सदर नशीन साहब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब के हाथों इसकी रस्म इजरा अंजाम दी। मैं सबसे पहले जनाब सदर नशीन साहब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का आज मसरूफ तरीन दिन। उन्होंने डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और एड़पल्ली में 9 तामीर शुदा किसान वेदिका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। आशा वर्कर से मुख्तलिफ खिदमत ली जाती है मगर इनको बराए नाम तनख्वाह दी जाती है। ये सरासर नाइंसाफी है। आशा वर्कर्स को जॉब कार्ड दिया जाए और 7,500 रुपये तनख्वाह दी जाए। CITU का मुतालबा। कांग्रेस किसानों के मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ी है, लिहाजा सोनिया गांधी ने अपनी यौम पैदाइश तकरीब को सादगी से मनाने की हिदायत दी। कांग्रेसी कायदीन का बयान। आज गरीब व यतीमों में कपड़े तकसीम किए गए। जवां साल कायद मोहसिन खान को सदर जिला वेलफेयर पार्टी मुकर्रर किया गया। कौमी जनरल सेक्रेटरी ने अहकामाती मकतूब हवाले किया और इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन खान ने मुमकिन अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।